वक्षस्थल नित्यवास रसिका तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे वन्दे श्रीवैकुण्ठनिकेतनं पंचरात्र प्रवक्तारं आद्यं नारायणं गुरुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। अंदरू संकल्प मुद्रलो కూర్చోండి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి సంకల్ప విధానం తెలిసిన వారు సంకల్పాన్ని చేయండి సంకల్ప విధానం తెలియని వారు అమ్మవారినే ప్రార్థన చేయండి எல்லாரும் సంకల్ప ముద్రயில உட்கார்ந்துக்கோங்கோ సంకల్ప విధానం தெரிஞ்சவா సంకల్పத்தை செய்யுங்கோ సంకల్ప విధానం தெரியாதவா தாயாரையும் பெருமாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ சர்வேஷாம் भक्तजनानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छता फलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं आरोग्य दृढ़गात्र वज्र शरीराभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु। गोविंदा गोविंदा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंदिरमूर्ते महादेवी महालक्ष्मी நமோஸ்துதே என்று அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. பக்தர்களே, இன்று மிகவும் விசேஷமான நன்னாள். என்னவென்றால் ஆண்டாளுடைய ஆடிப்பூர திருநக்ஷத்திரம், ஆண்டாளுடைய பிறந்த நாள் என்று. புதன்கிழமை ஆடி மாதம் திருத்தியை திதியன்று விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே தாயார் ஆவிர்பவித்திருக்கிறாள். விசேஷமாக அந்த தாயாரை சேவிப்போம். ஆடிப்பூரம் என்றாலே நமக்கு நினைவிற்கு வருவது ஆண்டாள். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே பூரம் நட்சத்திரம் ஆண்டாளுடைய மாத திருநக்ஷத்திரம், அதாவது இன்று அவள் ஆவிர்பவித்த நாள். ஆணாகிய பரமபுருஷனின் தாளை பழிந்தவள் ஆகையால் ஆண்டாள் என்று அழைக்கப்படுகிறாள். ஆணாகிய பகவானின் தாள்களை பற்றுங்கள் என்று கூறியவளாய் இருக்கிறபடியால் ஆண்டாள் ஆனாள். பூமி பிராட்டியின் அம்சமாய் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே பெரியாழ்வாரின் திருமகளாம் அவதரித்தவள் ஆண்டாள். தன் பாமாலை பூமாலையாலும் எம்பெருமானை ஏத்தி வழிபட்டவள் ஆண்டாள். ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை வேதம் அனைத்திற்கும் வித்து என்று புகழப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் மகாலட்சுமியின் அம்சமாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே திருத்துழாய் வனத்திலே பெரியாழ்வாரால் கண்டெடுக்கப்பட்டவள். அவளுக்கு கோதா என்றும் கோதா தேவி என்றும் ஆண்டாள் என்றும் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்றும் இப்படி விசேஷமான பெயர்களை வைத்து நாமங்களை வைத்து அந்த பெரியாழ்வார் அவளை வளர்த்து வந்தார். அப்படிப்பட்ட அந்த பூமி பிராட்டியின் அம்சமாக இதோ இங்கே பத்மாவதி தாயாராக எழுந்தருளியுள்ளாள். திருச்சானூரிலே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன்
திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருச்சானூர் கோவில் உள்ளே இருக்கும் மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பிலே செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, ஆண்டாளை செவியுங்கள். அவளுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று அவள் எப்படி அந்த பெருமாளின் பக்தியை பெற்று அவனையே திருமணம் செய்து கொண்டாளோ அதுபோல் நாமும் அவளை சேவித்து அவளுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவோம். ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியை நமஹா என்று அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதியை சேவிக்கலாம். இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமாகியது. இதோ சர்வாலங்கார பூஷிதளாய் ஆண்டாள் எழுந்தருளி தங்க பல்லக்கிலே அதாவது அந்த தங்க சிம்ஹாசனத்திலே அமர்ந்திருக்கிறாள். அவளுடைய மாங்கல்யங்களை செவிக்கலாம். திருச்சானூரில் வாழும் பத்மாவதி தாயாரே, அலர்மேல் மங்க புறத்தாளே, பத்மாசனி பத்மவர்ணா பத்மநேமி என்று இப்படி அஷ்ட லக்ஷ்மிகளாக திகழ்ந்து இங்கே கஜலட்சுமியாக அவதரித்திருக்கும் அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சேனா முதலி எனப்படும் அந்த விஸ்வக்சேனருக்கு முதலில் ஆராதனை செய்கிறார்கள். அதை தொடர்ந்து கலச பூஜை, சுத்தி புண்ணியாவாசனம் ஆகியவற்றை நாம் சேவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் எம்பெருமான் மகாவிஷ்ணுவின் வக்ஷஸ்தல நாயகியாக திருமலையிலே திருமலை அப்பனாக ஸ்ரீனிவாசனாக இங்கே எழுந்தருளி அந்த பத்மாவதியாக ஆவிர்பவித்திருக்கிறாள். அந்த தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கலாம். இந்த திருப்பாவையில் அர்த்த பஞ்சகம் விளக்கப்படுகிறது. சரணாகதி கூறப்படுகிறது. நாராயணனே நமக்கு எல்லாம் என்றபடியே வலியுறுத்துகிறார். ब्रह्मणायं ब्रह्मपुरीमहे पावमानि अध्येते अर्षभिसम्मृतकमुरसमुदरभगो सपोतपज्ञाते चतुर्धम्मादर्शना पावमानि यजोर्ध्येते अर्षभिसम्मृतकमुरसमो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगो सर्वैर्मधोदकौ पावमानि स्वस्यैने चतुर्गाहि भयस्वती अर्षभिसम्मृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतको एतां पावमानि त्रिचन्द्राय मल्लोकमतो अमों कामान् समर्थयन्तुना देवीर्देवै समावृता पावमाने स्वसेने सुदुःखाहि कृतच्युतार्षभिसम्मृतो रस गणेशमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सुरातेन सहस्रधारेण पावमान्यपुरन्दमा आदापत्यं पवित्रं सतोज्जामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं भूतं ब्रह्म महेन्द्रसुनीति सह माप्नातु सोमस्वज्या वरुणसमेध्या यमो राजा प्रवरुणाभिप्रातमा जातवेदामुज्जयुञ्चाप्नातु पूर्वोऽस्वः तज्जयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेदजं सन्नोऽस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति।
ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வாசனம். பக்தர்களே, இன்று விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே நாம் ஆண்டாளுடைய அந்த திரு நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு அவளை பற்றி சற்று தெரிந்து கொள்ளலாம். திருப்பாவையில் வேதாந்த கருத்துக்கள் பொலிந்து கிடக்கின்றன. நாச்சியார் திருமொழியில் ஆண்டாள் முதலில் வேங்கடவனை துதி செய்கிறாள். வேங்கடவர்க்கு என்னை விதிக்கிற்றியே என்று கூறுகிறாள். திருவேங்கடமுடையான் தன்னுடைய பக்தியை நன்கு வெளிப்படுத்துகிறாள். சர்வ ஜெகத் ரக்ஷகன் திருவேங்கடமுடையான் என்பதை ஆண்டாள் நமக்கு தெரிவித்தவள். அப்படிப்பட்ட அந்த வேங்கடமுடையானுடைய பாரியையான பத்மாவதி தாயார் இங்கே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நமக்கு சேவை சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவளுடைய கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஒளிவண்ணம் வளை சிந்த உறக்கத்தோடு இவையெல்லாம் எளிமையால் இட்டென்னை ஈடழிய போயினவால் குளிரருவி வேங்கடத்து என் கோவிந்தன் குணம் பாடி அழியத்த மேகங்காள் ஆவி காத்து இருப்பேனே என்கிறாள் அந்த ஆண்டாள். அப்படி சதா சர்வ காலமும் அங்கே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே ரங்கமன்னாருடைய திருக்கோவிலிலே அந்த பகவானுக்கு தினந்தோறும் புஷ்பங்களை பறித்து மாலைகளை தொடுத்து தான் சூடி அணிந்து கொண்டு பிறகு அவர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பாள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் இதோ இங்கே திருச்சானூரிலே பத்மாவதி தாயாராக எழுந்தருளியுள்ளாள். வேத மந்திரங்களை கேட்கலாம். सौर्यं झरं निर्देव वेद अमुम् एव आदित्यं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं दधाति ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी एव भवति उभयतः रुक्मौ भवतः उभयतः एव अस्मिन् रुजौ दधाति प्रयाजे प्रयाज इति प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति दिग्भ्यैति दिग्भ्यः एव अस्मै ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसमेति रुन्धे आग्नेय अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरदेव वेद सावित्रं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं भूम्यै जलं यः नकेता हिरण्यम् इन्देय हिरण्यं मा उपेति नमेते इति यत् आग्नेयः भवति आग्नेयं वै हिरण्यं यस्य एव हिरण्यं तेन एव येन ते
सावित्रः सवित्रे प्रसूतः येवायेन ते विन्दति भूम्यै चरो भवति अस्याम् येवायेन ते विन्दति उवेति हिरण्यं नमति वीति वै येषा इन्द्रियेण वीद्येन विद्यते यः हिरण्यं विन्दते येता एवानरति वपेते हिरण्यं विद्वा न इन्द्रियेण वीद्येन विधिरुध्यते एताम् एवानरति वपेते यस्य एवन्यं न स्येत् यत् आग्नेयः भवति आग्नेयं वै हिरण्यं हिरण्यं तेन एवायेन ते विन्दति सावित्रः भवति सवित्रप्रसूत इति सवित्रप्रसूतः एवायेन ते विन्दति भूम्यै चरुः भवति अस्यां वै यत् नश्यति यत् नश्यति अस्याम् एवायेन ते विन्दति इन्द्रः त्वष्टुः सोमम् अभिषहेत्यभिषः अभिभते सः विश्वं वीति आर्चते सः इन्द्रियेण वीति आर्चता सः यत् ऊर्ध्वम् उदवमेदित्युत अवमेदते श्यामागाः भवन् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिः उपेति अधावत् तस्मै एतं सोमेन्द्रं श्यामाकं चरं निरति अवपत् तेन एव अस्मिन्नेन्द्रियं समवेदमिति सोमवेदम् अदधाति वीति वै एषः इन्द्रियेण सोमवेदेनेति सोमवेदेन यः सोमवमिति यः सोमवामीति सोमवामी स्यात् तस्मै एतं सोमेन्द्रं श्यामाकं चरं निरति वपेते सोमं च एव इन्द्रं च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तौ एव अस्मिन् इन्द्रियं सोमवेदमिति सोमवेदं दत्तः न इन्द्रियेण सोमपीठेनेति सोमपीठेन वीतिरुध्यते यत् सौम्यः भवति सोमवेदमिति सोमवेदं एवावेति रुन्धे यद् ऐन्द्रः भवति इन्द्रियं वै सोमपीठ इति सोमपीठः इन्द्रियं एव सोमपीठमिति सोम अवेति रुन्धे श्यामाकः भवति येषः वावसः सोमः साक्षादिति साक्षात् एव सोमपीठमिति सोमपीठम् अवेति रुन्धे अग्नये दात्रे पुरोडादम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालनिरति वपेते इन्द्राय प्रदात्र इति प्रदात्रे पुरोडादम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् वसुकाम इति वसुकामः अग्निः एव अस्मै वसोने प्रजनयतीति प्रजनयति वृद्धान् इन्द्रः प्रेति मधु आवाधानाः भवन्ति एतत् वै पशूनां रूपेण एव पशून् अवेति पञ्चगृहीतमिति पञ्चगृहीतं भवति पाङ्क्ताः हि पशवः बहुरूपमिति बहुरूपं भवति बहुरूपा इति बहुरूपाः हि पशवः समृद्ध्या इति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं भवति प्राजापत्या इति वै पशवः प्रजापतिरिति प्रजापतिः एव अस्मै पशून् प्रेति जनयति आत्मा वै पुरुषस्य मधो यत् मधो अग्नौ जुहोति आत्मानम् एव तत् यजमानः अग्नौ प्रेति पङ्क्त्यौ याज्यानुवाक्ये इति याज्यानुवाक्ये भवतः वाङ्गः पुरुषः वाङ्गाः पशवः आत्मानम् एव निष्क्रियेति निक्रिया पशून् अवेति रुन्धे एवाह वै सत्रम् आसदार्थे परिमितमित्यर्थे परिमितं यस्कामा इति यतः कामः तेषां सोमं राजानां यसा आक्षते सः गिरिमुदिते ऐते ताम् अग्निः अनुवदिते ऐते तौ अग्नि सोमावित्यग्निः भवतां तौ इन्द्रः यज्ञविभ्रष्ट इति यज्ञविभ्रष्टः अनुपरेति ऐते तौ अब्रवीते याजयता
ब्रह्माः इति तस्मै एताम् निरते अवपदाग्नेयौ अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् सौम्यां चरं तया एवास्मिन्नेते इन्द्रियं ब्रह्मवक्षसमिति ब्रह्मार्चसम् अदत्ताहं यः यज्ञविभ्रष्ट इति यज्ञाविभ्रष्टः स्यादेतस्मै एतामिष्टिः निरतिवपेते आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् ऐन्द्र एकादशकपालमित्येकादशकपालम् सौम्यं चरं यत् आग्नेयः भवति तेजः एव अस्मिन्नेतेन दधाति यत् ऐन्द्रः भवति इन्द्रियम् एव अस्मिन्नेतेन दधाति गते सौम्यः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसेन आग्नेयस्य च सौम्यस्य च ऐन्द्रे समाश्लेषयेदिति समाश्लेषयेत् तेजः च एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चस स समीची इति दधाति सोमीयमित्यग्नि सोमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरतिवपेते यं कामः न वनमेदित्युपनमेत् आग्नेयः वै ब्राह्मणः सः स्वमं पिबति स्वामेव देवतां स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति सा एव येनम् कामेन समिति अर्थगति उपेति येनम् कामः नमति अग्नि सोमीयमित्यग्नि सोमीयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् निरतिवपेते ब्रह्मवर्चसकामगिति ब्रह्मवर्चसकामः अग्नि सोमावित्यग्नि सोमो एव स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति तौ एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसी एव भवति यत् अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः तेन आग्नेयः यत् श्यामाकः तेन सौम्यः समृद्ध्या इति समृद्धिः सोमाय वाजिने श्यामाकं चरं निरतिवपेते यः क्लैव्यात् विभीयात् रेतः हि वै एतस्मात् वाजिनम् अपक्रामतीत्यपक्रामति अथ एषः क्लैव्यात् विभाया सोमो एव वाजिनम् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् रेतः वाजिनम् दधाति न देवः भवति ब्राह्मणस्पत्यमिति ब्राह्मणः एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरतिवपेते ग्रामकाम इति ग्रामकामः ब्रह्मणः पतिम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै जातानि जातानि प्रेति गच्छति ग्रामे एव भवति गणवती इति गणवतिः याज्ञानुवाक्ये इति याज्ञा अनुवाक्ये भवतः जातैर्जातैः एव येनम् गणवन्तमिति गणवन्तं करोति एताम् एव निरतिवपेते यः कामयेत ब्रह्मण्ये विसंहमीति नाशयेयम् इति मारुति इति याज्ञानुवाक्ये इति याज्ञानुवाक्ये कुर्यात् ब्रह्मण्ये एव विसंहमीति नाशयति अर्यम्ने चरं निरतिवपेते स्वर्गकाम इति स्वर्गकामः असौ वै आदित्यः अर्यमा अर्यमणो एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन वेति धावति सः एव येनम् स्वर्गमिति सुभागं लोकं गमयति अर्यम्ने चरो निरतिवपेते यः कामयेत दानकामाः दानकामाः मे प्रजा इति प्रजाः स्युः इति असौ वै आदित्यः अर्यमा यः खलु वै ददाति सः अर्यमा अर्यमणो एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै दानकामाः प्रजा इति प्रजाः करोति दानकामाः इति दानकामाः अस्मै प्रजा इति प्रजाः भवन्ति अर्यम्णे चरं निरते
वपेते यः कामयेत स्वस्ति जनताम् याम् इति असौ वै आदित्यः अर्यमा अर्यमणो एवासेन भागधे येनेति भागधेयेन वेति धावति सः एवायनम् तदे गमयति यत्र जिगमिषति इन्द्रः वै देवानाम् आनुजावर इत्यानो जावरः आसीतेतः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् वेति अधावत् तस्मै एताम् ऐन्द्रम् आनुशोकमित्यानुशोकम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरति अवपते तेन एवायेनम् अग्रम् देवतानाम् परीति अनयते पुत्रावती इति पुत्रावतीः अग्रवती इत्यग्रावती याज्ञानुवाक्ये इति याज्ञानुवाक्ये अकरोत् बुद्धाद् एवायेनम् अग्रम् परीति अनयते यः ब्राह्मणः अनुजावरगित्यानुजावरः स्यात् तस्मै एतम् ऐन्द्रम् आनुशोकमित्यानुशोकम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरति वपेते इन्द्रम् एवास्वेन भागधेनेति भागधेन वेति धावति सः एवायेनम् अग्रम् समानानाम् परीति नयति पुत्रवती इति पुत्रावती अग्रवती इत्यग्रवतीः याज्ञानुवाक्ये इति याज्ञा अनुवाक्ये भवतः बुद्धाद् एवायेनम् अग्रम् परीति नयति आनुशोक इत्यानुशोकः भवति एषा हि एतस्य देवता यः आनुजावर इत्यानुजावरः समृद्ध्या इति समृद्धिः यः ब्राह्मणः अनुजावरगित्यानुजावरः स्यात् एतम् बृहस्पत्याम् आनुशोकमित्यानुशोकम् चरम् निरति वपेते बृहस्पतिम् एवासेन भागधेनेति भागधेन उपेति धावति सः एवायेनम् अग्रम् समानानाम् परीति नयति बुद्धवती इति बुद्धावती अग्रवती इत्यग्रवतीः याज्ञानुवाक्ये इति याज्ञानुवाक्ये भवतः बुद्धाद् एवायेनम् अग्रम् परीति नयति आनुशोक इत्यानुशोकः भवति एषा हि एतस्य देवता यः आनुजावर इत्यानुजावरः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம். இந்த மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் என்பது ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் ஒவ்வொரு திருமணத்திலும் நடைபெறும் ஒரு கைங்கரியம். அதேபோல் இந்த பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கரத்தை பகவானுடைய திருக்கரத்திலே பிடித்து கொடுத்து அதன் பிறகு 7 தலைமுறைகளுக்கான பிரவரைகளை கூறி அந்த சாலங்கிருத கன்னியாதானம் செய்கிறார்கள். பெரியாழ்வார் கூட தன்னுடைய பெண்ணை எம்பெருமான் ரங்கமன்னாருக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு தாயாகவே மாறிவிட்டாராம் அந்த பெரியாழ்வார். திருமால் மேல் பல்லாண்டு பாடிய பெரியாழ்வார் தாயாகி கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பல்வேறு செயல்களுள் மனம் தோய்ந்து பக்தி சுவையுடன் அந்த எம்பெருமானை குறித்து பாடினாராம். மால் நிற வண்ணனாய் மாயவனாய் அவதரித்த கண்ணனை குழந்தையாக கருதி பெரியாழ்வார் பாடிய பாசுரங்கள் கற்பார் மனதை கசிவித்து தாய்மையின் பேரன்பினை சகலர்க்கும் ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் பெற்றவை. கண்டார் மனமயக்கும் மன்னனாய் மண்மீதில் அவதரித்த மாயவனின் எல்லா செயல்களிலும் உள்ளம் பறிகொடுத்து தோய்ந்து இவர் பாடி அருளிய பாசுரங்களின் பக்தி அனுபவம் நமக்கு பெரியதாக காணப்படுகிறது. அதேபோல் அந்த ரங்கமன்னாரைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று அந்த பாசுரங்களை இயற்றியும் பாமாலைகளை சூற்றியும் பூமாலைகளை எல்லாம் சமர்ப்பித்தவள் ஆண்டாள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் இங்கே பத்மாவதி தாயாராக எழுந்தருளியிருந்து இதோ அந்த ஸ்ரீனிவாசனை கரம் பிடிக்க எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள். அதற்காகத்தான் சாலங்கிருத கன்னியாதானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானே, ஸ்ரீனிவாசனே, பத்மாவதி தாயாரே சரணம் சரணம் பிரபத்தியே என்று அவர்கள் அந்த 2 தம்பதியர்களையும் சேவித்து கொள்ளலாம்.
ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியே நமஹ. சாலங்கிருத கன்னியாதானம் செய்தால் 21 தலைமுறைகளுக்கும் செழிக்கும் என்பது உறுதி. அப்படி அந்த தாய் தந்தையர்களுக்கு மோட்சத்தை கொடுப்பவள் தான் பெண். அப்படிப்பட்ட பெண் தான் இந்த பத்மாவதி தாயார். திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ சாலங்கிருத கன்னியாதானம் முடிந்தது. புனः யாச்சதாதா அஸ்மை ஹேன புனः அததாதே சஹ அப்ரவீதே ரதம் அமேஸ்வாயதா समावत्स इति समावते सः उपैष्यामि ச்சுபயேஷ்யாமி அதாதே புனः தாஸ்யாமி இதி சஹ ரதம் ஆமிதே தாः अस्मै पुनः ददाते तासां रोहिणीम् एव उपेति ऐतेतां यक्ष्मः आच्छते राजानं यक्ष्मः आरते इति तते राजयक्ष्मस्येति राजा राजा यक्ष्मस्य जन्मायते पापीयान् अभवते तते पापयक्ष्मस्येति पापायक्ष्मस्यायते राजाभ्यः अविन्दते तते जायेन्यस्य जाय एवं एतेषां यक्ष्माणां जन्म वेदानायेन एते यक्ष्माः विन्दन्ति सः एताः एव नमस्यन् उपेति अधावत् ताः अब्रुवन् वरं वृणामहे समावत्स इति समावते सः एव नः उपेति अयः इति तस्मै एतम् आदित्यं चरन् निरति अवपन्ने तेन एव येनं पापाते सामाते अमुञ्चन्ने यः पापयक्ष्म गृहीत इति पापयक्ष्म गृहीतः स्यात् तस्मै एतम् आदित्यं चरन् निरति वपेते आदित्यान् एव सेना भागधे जेनेति भागा येन उपेति धावति ते येवायेनं पापाते सामाते मुञ्चन्ति अमावास्यायामित्यमावास्यायां निजति वपेते अमुम् एवायेनम् आप्यायमानमित्याप्यायमानम् अनुयेति प्यायेति नवो नव इति नवः नवः भवति जायमानः इति पुराणवाक्येति पुनः अनुवाक्या भवति आयुः एव अस्मिन्नेतया दधातीयाम् आदित्याः अगुंसम् आप्याययन्तीत्याप्याययन्ति इति याज्या एति एव येनम् एतया प्याययति प्रजापतिरिति प्रजापतिः देवेभ्यः अन्नाद्यमित्यन्न अद्यं यादिशदिति वि आदिशत् सः अब्रवीत् यत् इमान् लोकान् अभिति अतिरिच्यत इत्यतिरिच्यते तत् मम असत् इति तत् इमान् लोकान् अभि अदिति अरिच्यत इन्द्रं राजानम् इन्द्रं अधिराजमित्यधिराजम् इन्द्रं स्वराजानमिति स्वराजानं ततः वै सः इमान् लोकान् त्रेधा अदुहते तते त्रिधातोरिति त्रिधातोः त्रिधातुत्वमिति त्रिधातु त्वं यं कामयेत अन्नादयित्यन्नादः स्याहम् इति तस्मै एतां त्रिधातुमिति त्रिधातुं निरते वपेते इन्द्राय राज्ञेः पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् इन्द्रायाधिराजायेत्यधिराजाय इन्द्राय स्वराज्ञ इति स्वराज्ञेः अयं वै इन्द्रः राजा अयम् इन्द्रः अधिराज इत्यधिराजः असौ इन्द्रः स्वराडिति स्वराडे इमान् एव लोकान् सेना भागधे जेनेति भागधेन उपेति धावति ते एवास्मै अन्नं प्रेति यच्छन्ति अन्नादयित्यन्नादः एव भवति यथा वत्सेन प्रत्ताङ्गां दुहे एवं केव इमान् लोकान् वृत्तान् कामम् अन्नाद्यमित्यन्न अद्यो दुहे उत्ताने स्विच्युतानेषु कपालेषु अदिति श्रेति अयातयामत्वायेत्ययातयाम त्वायात्रयः पुरोडासाः भवन्ति त्रयः इमे लोकाः येषां लोकानाम् आप्तैः उत्तर उत्तर इत्युत्तरः उत्तरः जायान् भवति एवम् इव हि इमे लोकाः समृद्ध्या इति समृद्ध्यैः सर्वेषाम् अभिगमगन्नित्यभिगमगन् अवेति जति असम्बट्कारमित्यसम्बटेकारम् यत्यासमिति वि अन्विति आह अनिर्दाहायेत्यनिः दाहाय देवासुरा इति देवासुराः संयत्ताः
देवासुराः अजयन् ते देवाः पराजिज्ञाना इति पराजिज्ञानाः असुराणां वैश्यम् उपेति आयन् तेभ्यः इन्द्रियां वीर्यम् अपेति अक्रामत् तद् इन्द्राः जायते तद् अनु अपेति अक्रामत् तद् अवरुद्धमित्यवरुद्धम् तद् अस्मात् अभ्यर्थ इत्यभिअर्थः सा प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावत् तम् एतया सर्ववृक्षयेति सर्ववृक्षयाः अयाजयत् तया एव अस्मिन् इन्द्रियं वीर्यम् अदधात् यः इन्द्रियकामैति इन्द्रियकामः वीर्यकामैति वीर्यकामः स्यादेतम् एतया सर्ववृक्षयेति सर्ववृक्षया याजयते एताः एव देवताः तेनाधेनेति भागाधेना उपेति धावति ताः एव अस्मिन् इन्द्रियं वीर्यं दधति यदेन्द्राय राधन्तरायेति राधं निर्वपतीति निवपति यदेव अग्नेः तेजः तत् एव अवेति रुन्धे यदेन्द्राय बार्हताय यदेव इन्द्रस्य तेजः तत् एव अवेति रुन्धे यदेन्द्राय वैरूपाय यदेव सवितुः तेजः तत् एव अवेति रुन्धे यदेन्द्राय वैराजाय यदेव धातुः तेजः तदेव अवेति रुन्धे यदेन्द्राय साक्वराय यदेव मरुतां तेजः तदेव अवेति रुन्धे यदेन्द्राय रैवताय यदेव बृहस्पतेः तेजः तदेव अवेति रुन्धे एतावन्ति वै तेजागंसेतानि एव अवेति रुन्धेः उत्ताने स्विच्युतानेषु अधीतिशयति अयादयामत्वायेत्तयादयामात्वाय द्वादशकपालैति द्वादशकपालः परोडासः भवति वैश्वदेवत्वायेति वैश्वदेवा त्वाया समन्तमिति अन्तां पर्यवज्यतीति पर्यवज्यति समन्तमिति अन्ताम् एव हरियं वीर्यं यदाने दधाति व्यत्यासमिति व्यत्यासम् अन्विति निर्दाहायेत्यनिदाहाय अश्वः ऋषभः वृष्टिः बस्ताः सा दक्षिणा वृषत्वायेति वृषत्वाय एतया एव चेताभिसस्यमान इत्यभि सस्यमानः एताः जायित वै अस्य देवताः अन्नम् अदन्ति वो एव अस्य मनुष्याः जनः वै कौणेजः क्रतुचिदमिति क्रतुचिदं जानके चक्षुर्वण्यमिति चक्षुः वन्यः अजाते तस्मै एताम् इष्टिं निरते अवपते अग्नये भ्राजस्वते पुरोडासं अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं सौर्यं चरम् अग्नये भ्राजस्वते पुरोडासं अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं तया एव अस्मिन् चक्षुः दधाति चक्षुष्कामैति चक्षुः कामः स्यात् तस्मै एताम् इष्टिं निर्देवपेते अग्नये भ्राजस्वते पुरोडासं अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं सौर्यं चरम् अग्नये भ्राजस्वते पुरोडासं अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं अग्नेः वै चक्षुषा मनुष्याः वीति पश्यन्ति सूर्यस्य देवाः अग्निं च एव सूर्यं च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तौ एव अस्मिन् चक्षो दत्तः चक्षुष्मा एव भवति यत् आग्नेयौ भवतः चक्षुषी इति एव अस्मिन् तत् प्रतीति दधाति यत् सौर्यः राशिकां तेनाभितः सौर्यम् आग्नेयौ भवतः तस्मात् अभितः नासिकां चक्षुषी इति स्मात् नासिकया चक्षुषी इति विधृते समानी इति याज्ञानुवाक्ये इति याज्ञा अनुवाक्ये भवतः समानं हि चक्षुः समृद्ध्या इति समृद्धिः उदिते उद्यां जातवेदसमिति जाता वेदसंहोजप्तः हरितः रथे चित्रं देवानाम् उदिति आगात् अनेकम्
इति पिण्डान् प्रेति यच्छति चक्षुः ये वा अस्मै प्रेति यच्छति यत् ये वा तस्य तत् ध्रुवाः असि ध्रुवाः अहौ अजाते त्विजिथा जातेषु भूया समूह वीरः चेत्ता वसुविजिति वसुविति ध्रुवः असि ध्रुवः अहं सजातेष्विति सजातेषु भूयासौ उग्रः चेत्ता वसुविदिति वसुविति ध्रुवः असि ध्रुवः अहं सजातेष्विति सजातेषु भूयासम् अभिभूरित्यभिभूः चेत्ता वसुविजिति वसुविति आमनमित्यामनम् असि आमनस्येत्यामनस्य देवाः ये सजाता इति सजाताः कुमाराः समनस इति समनसः तान् अहं कामये हृदा ते मां कामयन्तः हृदा तान् मे आमनस इत्यामनसः कृधे स्वाहा आमनमित्यामनम् असि आमनस्येत्यामनस्य देवाः याः त्रियः समनस इति समनसः ताः अहं कामये हृदा ताः मां कामयन्ताहं हृदाताः मे आमनस इत्यामनसः कृधे स्वाहा वैश्वदेवीमिति वैश्वदेवीं साङ्ग्रहणीमिति साङ्ग्रहणीं निरते भवेत् ग्रामगाम इति ग्राम कामः वैश्वदेवा इति वैश्वदेवाः वै जाताः विश्वाने एव देवान् स्वेन भागधेयेन भागधेयेन उपेति धावति एवास्मै जातानि सा जातानि प्रेति यच्छन्ति ग्रामे एव भवति साङ्ग्रहणीति साङ्ग्रहणे भवति मनोग्रहणमिति मनः ग्रहणं वै सङ्ग्रहणमिति सङ्ग्रहणं मनः एव जातानामिति जातानां गृह्णाति ध्रुवः असि ध्रुवः अहं सजातेषु सजातेषु भूयासम् परिधीनिति परिधीने परिधि दधाति आशिषमित्याशिषं ये वा येतां येते शास्ते अथो इति एतद् एव सर्वं सजातेष्विति सजातेषु अधीति यस्य एवं विदुषः एते परिधय इति परिधयः परिधीगन्त इति परिधीगन्ते आमनमित्यामनो असि आमनस्येत्यामनस्य देवाः इति तिस्रः आहुतिरित्याहुतिः ज्योति एतावन्तः वै सजाता इति सजाताः ये महान्तः ये क्षुल्लकाः याः जातान् एव अवेति रुन्धे ते नमो अवरुद्धा इत्यवरुद्धाः उपेति तिष्ठन्ते संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानद संकल्पवानं प्रकल्पवानमुपकल्पवानमुपकल्प्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीयाय सम्भूतं भूतं चित्तकेतु प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानासपग्रस्तवन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभन शोभमान कल्याणः
यत् नवम् ऐत् तत् नवनीतमिति नवनीतम् अभवत् यत् असर्पत् तत् सर्पिः अभवत् यत् अध्रियता तत् घृताम् अभवत् अस्विनः प्राणयति प्राणः असीतस्य देः दत्ताहं ययोः प्राणयति प्राणः असि इन्द्रस्य प्राणयति प्राणः असीतस्य ते ददातु यस्य प्राणयति प्राणः असि स्वाहा विद्यावर्णयोर्दिमित्रावर्णयोः प्राणयति प्राणः असीतस्य ते दत्तां ययोः असि स्वाहा विश्वेषां देवानां प्राणयति प्राणः असीतस्य ते ददतु येषां प्राणयति प्राणः असि स्वाहा घृतस्य धाराम् अमृतस्य पन्थाम् इन्द्रेण दत्तां प्रयतामिति प्रायताहं मरुद्भिरिति मरुद्भिः तत् स्वाहा विष्णुः वरीति अपश्यत् तत् स्वाहा क्रीडागवि ऐरयते पावमानेन स्वाहा सोमेन गायत्रस्य वर्तन्या उपागंसोरित्युपागंसोः वीर्येण देवः स्वाहा सुविता इति सृजतो जीवातवे जीवनस्यादिः बृहत् रथन्तरयोरिति बृहत् रथन्तरयोः स्वाहा सोमेन दृष्टुवः वर्तन्या शुक्रस्य वीर्येण देवः स्वाहा सविता उदिति पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा అలమేలు
ఇచ్చినే వాడికైన వాడు నీకు బలవడనే ఆడుకోలు మాటవాడు అన్నిటా లాలించడటే ఆడుకోలు మాటవాడు అన్నిటా లాలించడటే ఈడలేని తమకాన నేల పొరలేవే ఆడుకోలు మాట
विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ